Hello, good morning everyone. So it is an important discussion that I'm coming with you with a new topic that is relating to the class 12 accountancy part 2, that is related to the issue and redemption of debenture. So dear student, now you come to know that the CBSE board have modified the question pattern, and accordingly from last year onward the multiple choice question 20 marks is added with every subject, and therefore it is very important now to look into the theory areas of any topic in a very detailed manner. So here in front of your screen you have seen distinction between shares and debentures. So it is a very possible area of discussion, and it is very known and important for us at least to go through what is there in your prescribed textbook. Although it is accepted that there are different textbooks are available in the market, but whenever a question is to set as per the CBSE norm, then it is limited for the question setter to definitely respect the source information which is prescribed by the government for the students, and this is source information is NCERT. So we can expect that the informations are available in NCERT in textbook may a very prominent role in framing multiple choice question. For distinction between shares and debenture, first one is ownership. A share is a shareholder is an owner of a company, whereas the debenture holder is only a loan creator. A share is a part of the owned capital, whereas debenture is a part of the borrowed capital. ये तो है बुक में दिया गया इंफॉर्मेशन, बट टू अंडरस्टैंड इट, अ शेयर होल्डर जिसने शेयर्स खरीदा है वो होता है शेयर होल्डर इज ए ओनर. वो क्या है? ओनर ऑफ द बिजनेस. ओनर मीन्स मालिक. That means we understand that by purchasing a share, you also can be a owner of a business या company. But a debenture holder is a loan creditor. डिवेंचर होल्डर क्या करते हैं? आपको लोन देता है. जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देता है, इस तरह से पर्सनल लेवल पे ए डिवेंचर होल्डर इज ऑल्सो ए लोन प्रोवाइडर. और ए लोन प्रोवाइडर एक ओनर नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसी हिसाब से शेयर्स ओनरशिप कैपिटल का एक हिस्सा है. शेयर्स जो है ओनरशिप कैपिटल का हिस्सा है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैपिटल जो होता है वो दो कैटेगरीज का होता है. वन इज ओन कैपिटल, वन इज बोरोड कैपिटल. ठीक है, एक है वो मालिक का अपना जुगाड़, अपना पैसा, और दूसरा होता है उधारीकृत पूंजी. सो अब शेयर्स हो जाता है ओन कैपिटल और डिबेंचर्स हो जाता है क्या? बोरोड कैपिटल. सो इनमें से दो क्वेश्चन का संभावना है, दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो सकता है. एक कि शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. दूसरा है रिटर्न. द सेकेंड फेज ऑफ आवर डिस्कशन इज रिटर्न. The return on share is known as dividend, while the return on debenture is called interest. The rate of return on shares may vary from year to year depending upon the profit of the company, but the rate of interest on इसमें debenture is prefixed. Rate of interest on debenture is prefixed. The payment of debenture is an appropriation out of profit, whereas the payment of interest is charged a profit and it is paid even if there is no profit. So इसमें कहा गया है कि द रिटर्न मतलब डिबेंचर पूंजी, मतलब एक इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक इन्वेस्टर है, आप एक कंपनी नहीं है.
तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना पूंजी जो है, आपका सेविंग्स जो, वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर्स और वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन डिवेंचर्स, बट यू आर इन्वेस्टिंग विद एन एक्सपेक्टेशन टू गेट सम रिटर्न। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो, आप या डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट से आपके घर में कुछ कमाई हो। वो कमाई का बात बोल रहे हैं, दैट रिटर्न वी आर सेइंग, इफ द रिटर्न इज कमिंग फ्रॉम शेयर्स, द नेम ऑफ द रिटर्न इज कॉल्ड डिविडेंड, and where if the return is coming in the name of debenture investment, then this return is called interest। यहाँ पे dividend and interest। दूसरी बात है द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, एनुअल परसेंटेज के हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड द रेट ऑफ रिटर्न। द रेट ऑफ रिटर्न में वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये डिविडेंड जो होता है शेयर्स के ऊपर में, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड के ऊपर आपको कितना पैसा की रिटर्न मिलेगा ये आप बता नहीं सकते, यू कैनॉट से। ये डिपेंड करता है कि हाउ मच प्रॉफिट वी आर जनरेटिंग दिस टाइम। If we are generating less profit, then our expected return is also less. If we are generating high profit, then our expected return is high. So ये volatile, ये changes होता रहता है, ठीक है, ये रेट की बात होता है। लेकिन डिविडेंड के बारे में ये बताया कि ये चेंज होता रहे, बट डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद जो बोला जाता है वो प्री फिक्स्ड होता है। कि क्या लिखा है, वो प्री फिक्स्ड, इसमें कोई परिवर्तन आ ही नहीं सकता, या उसके साथ कोई प्रॉफिट का संबंध नहीं होता है। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो रेट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो रेट घटेगा। ऐसा शेयर्स के साथ हो सकता है, लेकिन डिवेंचर्स के साथ नहीं हो सकता। तीसरी बात बताया कि द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, वेर एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। यहाँ पे क्या बोलता है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जो आपको प्रॉफिट कमाई हुआ है उनसे ही इसको बांटा जा सकता है। बांटा मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इससे इट इज़ नॉट ए डिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न इन फ्रॉम द सोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के सोर्स से निकले हुए प्रॉफिट को बांटने का काम बोलता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इंटरेस्ट जो देता है वो प्रॉफिट होने के बाद बांटने वाला काम नहीं है, वो उससे प्रॉफिट माइनस होता है। मतलब ये होता है कि सपोज़ आप बिजनेस करके आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके आपने 12 लाख रुपया का सेल किया, तो इसका मतलब है आपका 2 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। उन 2 लाख रुपया प्रॉफिट में से डिविडेंड को माइनस नहीं किया जाएगा, समझ गया। 2 लाख रुपया प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस नहीं किया जाएगा, लेकिन इन 2 लाख रुपया जो प्रॉफिट होता है वो उन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तब जाके जो प्रॉफिट आएगा उसको एक्चुअल प्रॉफिट माना जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो इन जो सेकंड पॉइंट है रिटर्न, इस सेकंड पॉइंट से हमारे पास 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि रिटर्न को क्या नाम से जानते हैं। दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेट कहाँ पे फिक्स है और कहाँ पे वेरी करता है। और तीसरा बात है कौन सा रिटर्न एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है और कौन सा रिटर्न चार्जेस ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा क्लास 12 का लेवल है तो आप लोगों को सीरियस होना ही पड़ेगा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन यू हैव टू बी वेरी सीरियस फॉर योर आंसर। रीपेमेंट, the third condition is the normally the amount of share is not returned during the life of the company। देखो इसमें लेकिन ध्यान रहे वर्ड क्या बोलते हैं, क्योंकि ये आपको मैं बताया क्योंकि ये एनसीईआरटी का बुक है, इसको लिखने से पहले बहुत बार सोचा गया है। ठीक है, तो इसके दिए गए हर शब्द एक्सक्लूडिंग द प्रिंटिंग एरर, टेक्निकल एरर को छोड़ के नॉर्मली जो डेलिबरेटली जो शब्द इशू किया करते हैं उन वर्ड्स का भरपूर मतलब होता है, तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। सो नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिटर्न्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, while the debenture are issued for a specified period
and the amount of debentures is returned after that period. However, an amendment in 1998 to the Companies Act 1956 has permitted the companies to buy back its own shares from the market, particularly when the prices of its shares in the market is lower than the बुक वैल्यू. ये एक हाउएवर बोल के बोला गया है, ये एडिशनल फीडिंग्स आपको दिया गया है. फिलहाल हम लोग ये जानने का सस्ती कर रिपेमेंट के बारे में वी आर जस्ट डिस्कसिंग द नॉर्मली शेयर्स में वंस इन्वेस्टेड यू डोंट एक्सपेक्ट दैट द मनी विल कम बैक, या कंपनी को भी ये लायबिलिटीज नहीं होता है द कंपनी नीड्स टू रिटर्न द मनी बैक टू द शेयर होल्डर्स, बट नॉर्मली, ठीक है. बट जब डिवेंचर्स की बारी आते हैं तो इन्वेस्टर्स को भी पता होता है कि मैं कंपनी को लोन दे रहा हूँ, आई एम ग्रांटिंग लोन टू द कंपनी फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ पीरियड, एंड आफ्टर द एंड ऑफ दैट पीरियड आई विल गेट बैक द मनी. एंड इसके बाद कंपनी को भी पता है कि आफ्टर द एंड ऑफ दैट सर्टेन पीरियड द कंपनी हैज़ टू रीपे द मनी बैक टू द डिवेंचर्स होल्डर. तो ये एक मुद्दा है. इसमें से आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेयर्स में रिटर्न का ड्यूरेशन क्या है या नहीं, या डिबेंचर में ड्यूरेशन है या नहीं. तो इसमें ज़्यादा सिंपल ही हो गया बात, ठीक है. नेक्स्ट, वोटिंग राइट. तो शेयर होल्डर्स एंजॉय द वोटिंग राइट विद द डिबेंचर्स होल्डर्स नॉट नॉर्मली एंजॉय द वोटिंग राइट. ये भी सीधा सीधी है. इसमें भी एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि वोटिंग राइट किसको मिलता है, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह वगैरह. तो आपको सिलेक्ट करना है शेयर होल्डर्स को. इश्यू ऑन डिस्काउंट. बोथ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट. दोनों को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट में. हाउएवर, शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 of the Companies Act 1956, which stipulates that the rate of discount must not exceed 10% of the face value. इसमें क्या कहता है कि डिवेंचर्स को और शेयर्स को दोनों को आप डिस्काउंट में बेच सकते हैं. आजकल बेच सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, ये भी आपको गूगल में सर्च करके देख लेना चाहिए, मेरा एडवाइस है, ठीक है. फिर भी बुक्स के लाइन पे हम अभी ध्यान दे रहे हैं. ये डिस्कशन ही है टू हाईलाइट द एनसीईआरटी बुक्स ओनली. तो शेयर होल्डर्स शेयर्स को डिस्काउंट में बेचा जा सकता है, वेरेस डिवेंचर्स को भी डिस्काउंट में बेचा जा सकता है. तो अंतर क्या है? हाँ, अंतर यही है कि शेयर्स को डिस्काउंट में बेचने के लिए हमें कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है जिनके बारे में सेक्शन 79 पे लिखित है. तो सेक्शन 79 में लिखित बात को ये कहा गया है कि 10% से नीचे जाकर शेयर्स को डिस्काउंट नहीं किया जाएगा. बच्चों, यहाँ पे मेरे एक बात नोट करना. आप लोगों को मैं ये बात बताता हूँ कि 1956 के बाद कंपनी एक्ट ने बहुत परिवर्तन लाया है और सबसे अहम परिवर्तन 2013 से हुआ है. तो आप लोगों को अगर बेटर नॉलेज के बारे में आपको क्रेज है, आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स एंड अपडेटेड आर्टिकल्स आर अवेलेबल. और इसके बारे में हम लोग का भी, मैं भी आर्टिकल्स बाद में दिखाऊंगा. तो फिलहाल आप ध्यान रहे कि अपडेटेड होते भी रहिए खुद के लिए. एनीवे, देन सिक्योरिटी. Shares are not secured by any charge, whereas debentures are generally secured and carry a fixed floating charges over the asset of the company. मतलब क्योंकि आप लोग को पता है कि डिवेंचर्स लोन की हैसियत से दिया जाता है और उसको रीपे करना पड़ता है. तो जिस बंदा ने लोन देता है कंपनी को, उनको अपना मनी का एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर चाहिए. तो कंपनी का जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका एक मॉर्गेज राइट्स होता है. लेकिन शेयर्स क्योंकि एक मालिकाना हक है, और एक मालिक को किससे सिक्योरिटी चाहिए? मालिक तो मालिक ही है, उसको कौन सिक्योरिटी देगा? तो इसीलिए शेयर्स में कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, बट डिवेंचर्स में सिक्योरिटी हो भी सकता है. कन्वर्टेबिलिटी. शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, वेयरएज डिवेंचर मे बी कैन बी converted into shares
इफ द टर्म्स ऑफ इश्यूज शो प्रोवाइडेड। अब क्वेश्चन है कि कन्वर्टेबिलिटी क्या है। कन्वर्ट आप जानते हो ना, एक से दूसरे में परिवर्तन करना। देखो यहाँ पे बोला है कि शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स। ध्यान रहे, शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, क्योंकि शेयर्स में आप मालिक है, मालिक से आप कर्जदाता नहीं बन सकते। शेयर्स कैनॉट बी कन्वर्टेड टू डिवेंचर्स। लेकिन डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट कंडीशंस पहले से ही फिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवेंचर्स को किया जा सकता है, शेयर्स को नहीं कर सकते। ओके, एनीवे, so these are the basic differences between shares and debentures। और इस पॉइंट से डेफिनेटली एक या दो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हर 100% बनेगा ही बनेगा। तो मेरा ख्याल से ये जो वीडियो है वो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे के लिए ज़रूर काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।